Good morning, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to today's session on financial empowerment of women students. In a world where knowledge is true currency, financial literacy is not just about numbers, it's about confidence, independence, and the ability to shape one's future. Today, as we come together, the focus is on understanding how young women can take charge of their financial journeys and become truly self reliant. I would like to take the privilege of introducing our speaker for today, Dr. Abhinav Jog, who is a BFSI trainer, ex AGM, SBI, educator, research advisor, and author with 42 plus years of combined experience in industry and academia. He has vast experience in India and abroad as a practitioner and trainer in retail banking, trade finance, commercial credit, bank operations, and stressed assets management. He was the head of Department of Finance at Indira School of Business Studies for a period of 11 years, and post-retirement, he is now a SEBI empaneled securities market trainer. He has delivered over 150 NSDL and NSE approved investor awareness programs to college students and working professionals across India. Dr. Abhinav is a postgraduate in commerce with a specialization in advanced banking and finance. He also holds an MBA degree with a specialization in banking. He has been awarded a doctoral degree for his research thesis on electronic banking. He is also an author of 2 books on banking. Being a recipient of the Kaushalya Acharya Award for the Best Master Trainer BFSI, which was conferred on him by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India in 2020. So we request you to please share your insights with us and lead us into today's session. Just a small request, I'm circulating in attendance sheets, girls. So only women faculty sign, from male faculty we have a separate sheet. Thank you, Sritaman, for the wonderful introduction. Thank you, Umesh sir, also for inviting me for this session. It's wonderful to be here. Maharishi Karve is the great inspiration for all of us, and so it is for me also to be here and speaking with all of you today. It's my honor and pleasure to speak with you today. So, if it's okay, we'll have a mix of English, Hindi, sprinkling of Marathi if you think that's okay. What is your preference? This is going to be an interactive session. It's not a monologue just because I'm standing on the stage. So, what's your preference of language? English? Great. So, we'll speak in English. So we'll get started. This is a session where we're going to have an introduction to financial planning. Now, this is not something as part of your curriculum, but this is a learning for your life in terms of what you do with your money that you earn and how you manage those funds. So, the tagline for this session is Soch kar, samajh kar, invest kar. So, we need the right space because here, photographs. I hope the photographs are not getting affected because of that lights being switched off. मागच्या करा पुढच्या राहू द्या. तो जैसे मैंने बताया, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना है. तो आप सबसे बड़े एक सवाल ये है कि आप ये कोर्स खत्म करेंगे तो व्हाट आर योर करियर गोल्स. आप अपना, आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स में, आप जब अपना कोर्स 4 साल का, उमेश से बता रहे थे 4 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद आपके करियर गोल्स क्या हैं? एनीबॉडी? क्या करना चाहेंगे आप 4 साल के बाद? सोचा है कुछ? क्या वो गाना था ना पुराना, पापा कहते हैं, कैसे नाम करोगे बड़ा नाम? क्या करेंगे बड़ा नाम करने के लिए? एनीबॉडी? व्हाट आर योर करियर गोल्स? यस, आई एम हैप्पी somebody in the last is raised hand. Yeah, Unai. Sir, I have planned on starting my own brand. Wonderful. What, fashion brand? Great. Give her a very big hand. Fashion brand is what she has in mind. Wonderful. Anybody else? Great. What's your name? Mehak. Mehak says she wants to have a fashion brand. बढ़िया. और कोई? इसका ख्वाब क्या है? कोई और बता सकता है? At least one other response, please.
आपके सपने तो है मन में, थोड़ा ओपन कर दीजिए। एनीबॉडी एल्स, क्या आपका ख्वाब है, क्या आपका ड्रीम है, व्हाट इज योर करियर गोल? एनीबॉडी, आई एम लुकिंग फॉर हैंड्स। नहीं, ठीक है, लेट्स टेक दैट एज अ गोल। अब मुझे ये बताइए कि आप जो भी अपने करियर में करना चाहेंगे, क्या वो जिंदगी भर करना चाहेंगे? 60 साल 70 साल तक करना चाहेंगे वही चीज? नहीं, क्या फिर व्हाट इज इट दैट यू डू एट सम पॉइंट इन टाइम? आपका ख्वाब ये नहीं कि मैं सब छोड़ छाड़ के अपना एम्बिशन, अपना पैशन परस्यू करना चाहूंगा। Maybe I would like to do trekking in the Himalayas, skiing in the Andamans, going to Switzerland. ऐसा ख्वाब है कि नहीं हम सबका? क्या जिंदगी भर मैं अपना फैशन ब्रांड करता रहूंगा, कि जिंदगी भर मैं उसके पीछे दौड़ता रहूंगा, जैसे मैं कॉलेज से आता रहा ये रही हूँ वैसे ही करता रहूंगा? नो। सो वी वुड लाइक टू एक्सरसाइज द चॉइस कि एक समय मैं ऐसा करना चाहूंगा या करनी चाहूंगी कि मैं अपने मन का करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू परस्यू माई पैशन, माई ड्रीम, going to Himalayas, go to skiing in Andaman, Switzerland, Dubai, जो चाहूँ पेंट करूँगा, YouTube अपना चैनल बनाऊँगा, जो कुछ करूँगा, लेकिन अपना धंधा काम अब नहीं करूँगा। So which means क्या हम जो अपना बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, क्या उसी पे हमारी सारी जिंदगी चल सकती है? नहीं चल सकती है। So there are two types of income, there are two sources of income. One is your active income, वो इनकम जो हम एक्टिवली कमाते हैं, मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में, मेहनत करके या जो नौकरी में पैसा अपना एफर्ट लगा करके अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आवर एक्टिव इनकम। सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे हम सारी जिंदगी हमारे खर्चों को निकाल कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं कर पाएंगे। सो उसके साथ वन गुड थिंग, गुड साइड इज, मुझे एक चॉइस चाहिए कि मैं अर्ली इन द लाइफ 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में छोड़ छाड़ के अपना पर्सनल पैशंस, दिस इज अ गुड ऑप्शन। The other side is, कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, they become jobless, they become unemployed। आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि नहीं? कब होता है ऐसा? कभी हाल में कभी देखा ऐसा होते हुए? कोविड के दिनों में ऐसे कई बिजनेसेस, कोई फैशन डिजाइन वाला होता है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, एयरलाइंस है, कई ऐसे बिजनेसेस थे जो बंद हो गए, जिनका काम बंद हो गया, बिजनेसेस वर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और उन दिनों में उनका एक्टिव इनकम क्या हो गया? एक्टिव इनकम को बंद हो गया। सो एक्टिव इनकम, गुड टाइम्स एंड नॉट सो गुड टाइम्स। सिर्फ एक्टिव इनकम पे हमें डिपेंड करना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जिसको हमें डेवलप करना है, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। हम खुद एक्टिव नहीं रहते हैं, तो कौन एक्टिव रहता है? मनी वर्क्स फॉर अस। वी डोंट वर्क फॉर मनी, बट मनी वर्क्स फॉर अस। वी रिमेन पैसिव, बट मनी वर्क्स फॉर अस। एंड हाउ डज मनी वर्क फॉर अस? व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट्स। तो आप चाहे जो भी हो जाओ, यू बिकम अ फैशन डिजाइनर, यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, यू बिकम एन इंजीनियर, जो कुछ भी बन जाओ, आप सबको इन्वेस्टर ही बनना है। बिकॉज एट सम पॉइंट इन लाइफ यू विल से, यार मेरे को ये सब बहुत हो गया यार, मेरा फैशन डिजाइनिंग, मेरा डॉक्टर, मेरा प्रैक्टिस सब बहुत हो गया, अब मुझे अपना कुछ करना है। दैट इज द टाइम दैट यू नीड दैट पैसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट से क्रिएट किया हुआ पैसा जो आपको चॉइस देगा, फाइनेंशियली एम्पावर करेगा कि यू कैन परस्यू योर पैशन, ड्रीम एंड डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। तो इसीलिए पैसिव इनकम को क्रिएट करना जरूरी है। इनकम दो सोर्सेज हैं, एक्टिव इनकम तो आप करोगे ही, साथ साथ पैसिव इनकम को क्रिएट करना है। इसीलिए दिस इज एन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो पैसिव इनकम के कैसे क्रिएट करते हैं? वो ऐसे तरीके जिससे हम पैसे कमाते हैं। अगर मैं एक घर लेता हूँ, उसमें खुद रहता हूँ, तो इज इट माई इन्वेस्टमेंट? नो, इट इज एक्चुअली फॉर माई ओन यूज। मैं अगर गाड़ी खरीदता हूँ, क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? टेक्निकली कहने में हाँ है, हाँ डिप्रिसिएशन होता है, उसमें खर्चे भी आ जाते हैं, पेट्रोल होता है, मेंटेनेंस होता है, इंश्योरेंस होता है, इट एक्चुअली एड्स माय एक्सपेंसेस। तो हम इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जहां से हम पैसे कमाते हैं। सो जब मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे डिविडेंड मिलता है, जब मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, जब मैं प्रॉपर्टी दे करके रेंट किराए पे देता हूं तो मुझे किराया मिलता है। ऑल दीज एड अप टू क्रिएट माय पैसिव इनकम। तो ये पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हमें सबको करना है बाय बिकमिंग इन्वेस्टर्स। तो पैसिव इनकम क्रिएट कैसे कर सकते हैं?
हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम? हमारे एक्टिव इनकम में से कुछ पैसा अलग रख करके उसको पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना. फ्रॉम द एक्टिव इनकम फ्रॉम हर फैशन ब्रांड दैट शी इज डूइंग, उसमें से जो पैसा कमा रही है उसमें से हमें कुछ पैसा बचा करके अलग रख करके उससे हमें पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स क्रिएट करने हैं. व्हिच मींस वी मस्ट हैव व्हाट? पहले एक्टिव इनकम, और एक्टिव इनकम में से क्या करना है? सेव करना है. वेरी गुड, सेव करना है. तो सेव का फॉर्मूला क्या है सेविंग का? सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? या लवली भाई दो वहां पे. माय गुडनेस, हु इज दैट? माय गुडनेस. What is your name, ma'am? Anjali ma'am is bang on. She says, before I reach to what Anjali ma'am has said, for the benefit of students, saving is income minus expenditure is equal to saving. सीधा गणित है ना? 50,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, 30,000 मैं खर्चा करता हूँ, बचे कितने मेरे? 30,000. लेकिन किसी महीने में 10,000 बच जाते हैं, किसी में 5,000 बच जाते हैं, किसी में 2,000 बच जाते हैं. Which means my saving is my, वो बचा कुचा खाना होता है ना जो कुत्तों को दे देते थे, उसको उतना महत्व देते हैं, उसको इतनी अहमियत देते हैं. बल्कि what ma'am says is we must flip that equation. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स नहीं कहना है, तो हमें क्या कहना है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. कमिट सम पोर्शन ऑफ योर इनकम एज सेविंग्स. दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज प्लानिंग. मैं अपने इनकम में से 20%, मैम से 30%, मेरे इनकम से हर एक कैन बी डिफरेंट. सम पीपल से 50% होना चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट व्यूज. लोग कहते हैं मैं कमाते हुए भाई एंजॉय करने के लिए कमाता हूँ. डिपेंड्स, बट व्हाटएवर इट इज, commit a percentage of your income as your monthly savings. 10%, 20%, 30% वो आपको सेव करना ही है. फिर बचे हुए पैसे में आपको एक्सपेंडिचर आपका मैनेज करना है, वो आपको बजट करना है. So savings is not your leftover money, it is something that you have planned as a strategy to set aside for your goals. अब सेविंग्स की हैबिट कैसे करनी है? How do you save money? क्या हमारा इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है इनकम हमारा? बढ़ता है. फोटोग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट 3-4 स्लाइड्स, 3-4 स्लाइड्स पहले हमारे इनकम में तुरंत बढ़ता रहता है, हर महीने में बढ़ता रहता है. तो व्हाट इज इट दैट वी कैन रियली कंट्रोल? एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स हैं. वन इज डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस एंड द अदर इज नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस. नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस क्या है? ऐसा खर्च जो हमारे नीड्स, हमारी जरूरतों पर करते हैं. सो हमारी जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान. हमारे क्या ऐसा है कि हम हमारी नीड्स को डिले कर सकते हैं, उसको फुलफिलमेंट डिले कर सकते हैं? खाना तो खाना ही है रोज, कपड़े तो पहनते ही हैं, घर तो जरूरी है, वी नीड दैट शेल्टर ओवर आवर हेड. तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है. नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को हमें करना ही करना है. वी हैव टू इनकर फॉर आवर सस्टेनेंस, लिविंग एंड लाइवलीहुड. तो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में तो डिस्कशन ही नहीं है, दे हैव टू बी फुलफिल्ड. सवाल है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस का. सो हियर वी टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन इज नीड्स एंड वांट्स. आज मोबाइल फोन नीड है या वांट है? नीड है या वांट है? आर यू रियली ऑनेस्ट व्हेन यू से इट इज अ वांट? Is a need, absolutely. Anjali ma'am is way ahead, absolutely. तो थोड़ा सा वो मेरा सेशन को दौड़ा रही है, आगे आगे चली जा रही है. सो अब मोबाइल इज अ नीड. पेरेंट्स के लिए भी नीड है. मेरी बच्ची कहाँ जा रही है भाई, मेरे को फोन करके देखने दो. हॉस्टल में तो है ना, होता है कि, और आप भी चाहेंगे कभी कभी इसको स्विच ऑफ करके पता नहीं चले कोई कहाँ जा रहा है, होता रहता है. बट इट्स अ नीड. अब ये अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आईफोन लेना है, आईफोन 17, देखा कितने लोग मुंबई बीकेसी में दौड़ दौड़ जा रहे थे, बैंगलोर में आईफोन 17. इज आईफोन 17 माय नीड और इज माय वांट? सच सच बताओ. डिजायर. बाइक आज नीड है या वांट है? जाना है ना, कौन पीएमडी पे डिपेंड करेगा या उबर का भरोसा नहीं, रिक्शा का भरोसा नहीं. I need my bike to go to my office and college, और शाम को घूमने जाना है तो बाइक चाहिए ना, इंडिपेंडेंट. अगर मैं ये कहूँगा कि मैं दुकाटी लेना चाहता हूँ,
मैं हार्ली डेविडसन लेना चाहता हूँ, सच सच बताओ, आप चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? दैट इज अ नीड और योर वांट? वांट। एक बाजार ले लो ना भाई, एक होंडा व्हीकल ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोपेड हमारे जमाने का मोपेड ले लो फुट फुट चलने वाला, एक बजाज तो ले लो। अगर गाड़ी लेनी है तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे टेस्ला चाहिए, इज दैट माय नीड और इट माय वांट? इट्स माय वांट। तो योर नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड विद द मनी दैट यू हैव, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। वांट्स डिले ग्रेटिफिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साधु की तरह हिमालय में जाके रहो और कुछ मत करो, बिल्कुल जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, लिव किंग साइज जो भी है सब कुछ करो, बट डिले ग्रेटिफिकेशन। पहले कमाओ पैसा है, वेल्थ क्रिएट करो, क्रिएट वेल्थ एंड देन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। फिर आईफोन खरीदो, फिर टेस्ला खरीदो, जो कुछ खरीदना है। द चैलेंज इज विद मेनी यंगस्टर्स, वो सेव किए बिना सीधा डेट में पहुंच जाते हैं। सो this you must have heard this statement, money doesn't buy happiness. You agree? ज्ञानी लोग बोलते हैं कि नहीं, पैसे से खुशी मिलती है क्या? पैसा नहीं मिलती है? सचमुच? Are you sure? अच्छा ये बताओ, are you all happy without money? हाँ शायद आप इसलिए बोलते हैं कि माता पिताजी के पैसे हैं। It is easy for all of you. Ask your parents. इस तरह बैठे हुए लोगों से पूछिए, क्या does money buy happiness? Yes. How does it buy happiness? If so, I met Anna Hazare. You heard of Anna Hazare? 25 साल पहले मैं उनके, he stays in village, रायगंज सिटी में छोटे से मंदिर में एक बेड पे उनका एक कबर्ड है, उनका स्टील का कबर्ड, 25 साल पहले होता। He used to tell me, उनके पहचान के मलबार हिल में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, और सोने के बाद they need a sleeping pill. So do you really think there are people? This old man staying in a small village somewhere in a remote corner has one khadiya, a bed and a cupboard. कौन ज़्यादा खुश होता है? There's an old song, हिंदोस्तान सारा जहां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां। Have you heard that song? चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। So the ones who really don't have anything are actually happy. जिसके पास बहुत होता है उसके बाद बहुत ज्यादा ख्वाहिशें होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। सो थिंक अगेन इफ यू थिंक मनी बाइज हैप्पीनेस, डज इट रियली बाय हैप्पीनेस? बट व्हाट मनी डज गिव यू इज, मनी गिव्स यू चॉइसेस। कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपए का मैं अगर आईफोन खरीद लेता हूँ तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। फॉर शॉर्ट पीरियड आई विल बी हैप्पी, बट इन द लॉन्ग टर्म that realization will strike me, यार मैंने 1 लाख रुपए का, अगर मैं 25,000 का सैमसंग लेता था, रेडमी लेता था, ओप्पो लेता था, बाकी के 25,000 का इन्वेस्ट करता था, 50,000 का रिजर्व क्रिएट करता था, that would have been a smarter choice. So money buys choices. It is what you do with your money that decides whether you will be happy or not. एक और चीज, आप जैसे अभी काम करने लग जाएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो बैंक्स विल स्टार्ट चेजिंग यू। आपका अकाउंट खोलेंगे, आपका करंट अकाउंट खोलेंगे और आपको 2 कार्ड्स देंगे। आई थिंक फैकल्टी विल बी हैविंग देम। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। फर्क क्या है इसमें? हाँ? One, whatever the amount we have already in bank, we withdraw that. Exactly. Other one is whatever we are not having, we are just buying it for some period of time, and then we have to pay it at the end. Absolutely, ma'am. What's your name, ma'am? No, Surbhi. Surbhi, ma'am. Absolutely. तो डेबिट कार्ड is something where you use your own money. मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, उसको मैं यूज करता हूँ। See, when it started 30 years ago when we bought a credit card, it was a convenience in those days. क्योंकि उन दिनों में परचेज करने के लिए या तो कैश ले जाना पड़ता था या चेकबुक ले जाना पड़ता था, तो कार्ड वाला कन्वीनियंस स्वाइप करके खरीद लिया। अभी क्या हो रहा है, डेबिट कार्ड में आप यूज ओनली योर मनी। मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए हैं तो 10,000 1 रुपए के लिए स्वाइप करूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे पैसे जितने बैंक में हैं उससे ज्यादा मैं परचेज कर ही नहीं सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड इज अ फैंटास्टिक थिंग। मेरे पैसे नहीं होते हुए भी मैं खरीद सकता हूँ। तो किसके पैसे पे खरीद रहा हूँ मैं? क्रेडिट कार्ड कंपनी के पैसे पे खरीद रहा हूँ। बाय नाउ पे लेटर। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है? हमने भी गॉट क्रेडिट कार्ड्स। वंडरफुल, वंडरफul, great. Why so few people have credit cards? When you start earning income, banks will start chasing you. अभी तो आपको नहीं करेंगे,
बट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इनकम, बिकॉज नेक्स्ट मंथ आप पे कर पाएंगे, उस एक्सपेक्टेशन से आपको देंगे। तो क्रेडिट कार्ड में आप दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपको अगले महीने बिलिंग साइकिल के 45 डेज में आपको पे करना है। बट मेनी टाइम्स यंगस्टर्स फॉरगेट इट। तो क्रेडिट कार्ड के बिल में आप देखेंगे देयर आर टू अमाउंट्स। क्या अमाउंट दिखाए जाते हैं? एक अमाउंट होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, और दूसरा होता है टोटल अमाउंट ड्यू। The statistics show that 40% of the credit card users only pay the minimum amount due. कार्ड को चालू रखने के लिए जितना जरूरी है उतना पे करते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो लोन में चला जाता है। और पता है आपको उस पे ब्याज कितना होता है? 35%। Absolutely. सर आप तो फोटोग्राफी के अलावा भी बहुत कुछ समझ। इट इज एज गुड एज 35 to 40% पर एनम, यानी 3-4% पर मंथ। ये तो साहूकारों से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट पीपल बिकम इम्पल्सिव। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास पावर है, मेरे को स्टेटस सिंबल है, मुझे खरीदना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स, 20% ऑफ, एक पर एक फ्री, ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, फलाना ट्रिप मिल रहा है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज टेम्प्ट यू। सो डू नॉट बिकम इम्पल्सिव इन योर बाइंग। सोच कर समझ कर खर्च करिए। इफ यू बिकम इम्पल्सिव, 40% ऑफ द पीपल आर इन डेट। 60% में रहिए। आपको अगले महीने पे करना है, ये समझकर ही आपको खरीदी करनी है, बाई करनी है। अदरवाइज यू बिकम इन डेट। लोगों के, एंड अगेन व्हेन आई मीट पीपल, ऐसा नहीं मैं जो बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आज मेरे प्रोफेसर कॉमर्स कॉलेज के, वो बता रहे थे उनके पहचान के हैं कोई आईटी कंपनी में, 1 लाख से ऊपर तनख्वाह है, और तनख्वाह के 2 दिन पहले वो पूछते हैं 5,000 दोगे, 7,000 दोगे, 10,000 दोगे। 4 कार्ड्स हैं, और बिफोर द सैलरी दिस IT person is going around asking for 5,000 and 10,000 rupees. So that is something that I want to caution you. If you buy things that you don't need, this is a serious caution for all of you. If you buy things that you don't need, फिर एक ऐसा वक्त आएगा आपको जरूरी चीजें भी बेचने के लिए वक्त आ सकती है। आपका स्मार्टफोन, आपकी गाड़ी, और कभी घर भी बेचने का, शिफ्ट इनटू रेंटल फ्लैट, ऐसा भी वक्त आ सकता है। सो बी स्मार्ट विथ मैनेजिंग योर मनी। इज देयर अ मिनिमम एज फॉर अर्निंग इनकम? नो। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन? 6 महीने में ही सर मैम थोड़ा बेचारे दिल हैव अ कॉम्प्लेक्स, बोलेंगे मैम ही इज पूरा, बट आई कम टू यू मैम, certainly you are an authority. Yes, can you tell me a person who in 6 months has shot to fame with the money that he's earned? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 6 महीने में इतना पैसा कमाया है कि लोग देखते रह गए। हाँ? नहीं, यार मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। 9 months। हाँ? मैं उम्र की बात कर रहा हूँ जिस उम्र में आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्चा। Grandson of Narayan Murthy. Warren Buffett started at the age of 11. 11, absolutely. Warren Buffett himself started early. But हमारे देसी एग्जाम्पल अगर दें तो आपने क्रिकेट तो फॉलो करते हैं आप? IPL करते हैं? तो IPL में आपने, ओह तो कौन है वो? Yes, I heard that. वैभव सूर्यवंशी 14 साल का स्कूल का बच्चा है, 10वीं कक्षा भी नहीं पास हुआ है। You know what is his IPL contract? 1 करोड़ 10 लाख रुपए का IPL कॉन्ट्रैक्ट है। तो कमाना इज नॉट डिफिकल्ट टुडे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, तो आपको इस उम्र में कमाना इज नॉट डिफिकल्ट टुडे, मैनेजिंग मनी इज मोर फास्ट। अब आपको क्या करना है? फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? जब ये जैसे सर मुझे सुबह बता रहे थे इतना ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनी है, जब ये बिल्डिंग बनी, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सीमेंट स्टील सीधा लेकर के ला दिया, शुरू कर दिया, चलो यहाँ से बिल्डर होगा यहाँ? कैसे हुआ कंस्ट्रक्शन? How did the construction of this building happen? What was the first step? प्लानिंग किया गया, किसी ने ब्लूप्रिंट बनाया, डिजाइन किया। आप लोग डिजाइन वाले हो ना, तो डिजाइन करते हो, आप टेक्सटाइल में सीधा काटने लग जाते हो कपड़ा, डिजाइन करते हो ना। तो सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिजाइनिंग योर प्लान फॉर द फ्यूचर। ऐसा नहीं है पैसे कमाने लग जाएंगे, खर्च करने लग जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू प्लान। Can somebody take photographs from here from the audience also, please? From the audience. Thank you. What's your name, ma'am? Sanjana. संजना, थैंक यू। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग? पहले आइडेंटिफाई योर गोल्स। व्हाट आर योर गोल्स? आपने करियर गोल्स तो बताए थे, व्हाट आर योर लाइफ गोल्स? व्हाट आर योर ड्रीम्स? एनीबॉडी? क्या ख्वाब है आपका, क्या ड्रीम है आपका? इधर इस तरफ से माझ्या मागून इकडे।
ऐसा तो क्या करना चाहेंगे आप अपने पैसे से? व्हाट आर योर ड्रीम्स? 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद क्या करना चाहेंगे आप पैसे को लेकर के? ये फासला कुछ ज्यादा है क्या? अंजलि मैम की तो आवाज मैं बहुत सुन रहा हूँ और कोई बोल ही नहीं। चलो एक अपना भी है। हाँ जी बोलिए, क्या ख्वाब क्या है आपके, ड्रीम्स क्या है? हाँ ट्रैवल, ओके वेयर? अराउंड द वर्ल्ड। बताइए, यहाँ से भी कोई आवाज आ रहा था? सॉरी, ट्रैवलिंग। और कोई? लगता है माँ बाप आपका घर गाड़ी सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं। सो टिपिकली फर्स्ट स्टेप इज, कोई कहेगा 3 साल मुझे मेरा गाड़ी खरीदनी है, कोई कहेगा मुझे घर खरीदना है, उसके बाद कोई कहेगा मेरे को यूरोप टूर जाना है, राइट? दीज आर आवर गोल्स। टिपिकली गाड़ी, हाउस, फॉरेन टूर, ये सब हमारे गोल्स होते हैं। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट यू मस्ट आंसर। वन इज व्हाट इज माय गोल? मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है। सेकेंड क्वेश्चन दैट यू शुड आंसर इज व्हेन? 2028 में अपनी गाड़ी खरीदना चाहूंगा, 2030 में अपना घर खरीदना चाहूंगा, 2032 में अपना यूरोप टूर करना चाहेगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाउ स्पेसिफिकली, हाउ मच मनी विल आई नीड? इसके बारे में हम लोग और नहीं करते हैं। हैंड पे किसी बैंक से लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कार्ड पे कर देते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच मनी विल आई नीड टू फुलफिल माय ड्रीम ऑफ बाइंग अ हाउस, ड्रीम ऑफ बाइंग अ कार, ड्रीम ऑफ डूइंग अ फॉरेन ट्रिप? तो ये तीनों सवालों के लिए आपके पास जवाब होने चाहिए कि 2028 में गाड़ी की कीमत क्या होगी, कहाँ से पैसे जुटाऊंगा, 2030 में घर के लिए पैसे कितने लगेंगे, कहाँ से मैं जुटाऊंगा, 2032 में मेरे फॉरेन ट्रिप के लिए कितने पैसे लगेंगे, where am I going to reach that money? So first identify your goals, then identify your assets. What are your assets? कार, घर, गाड़ी, जो भी आप ओन करते हो, they are your assets. Identify your liabilities. What are your liabilities? आप घर रहे में घर कितने का आता है? तो पिताजी को ही मालूम होगा, हमको क्या होगा? सर को मालूम होगा, जोगेंद्र सर और उमेश सर को मालूम होगा। हाँ 70-80 लाख। क्या हर एक की बस की बात है कि पूरा 70-80 लाख होगा भी? लेकिन सबके बस की बात है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? होम लोन लेना पड़ेगा, लाइबिलिटीज रेज करने पड़ेंगे। गाड़ी लेनी है तो आपको लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो बैंक बाजार में जाकर के ढूंढो किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस कम होंगे। ये हमको लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। फिर हमें फ्यूचर इनकम क्या होगा, कि मेरे बिजनेस में से इनकम कितना मिलेगा, मेरे अदर इनकम, पैसिव इनकम कितना इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, उसको मैं वी ऑल यूज एक्सेल करना शुरू करिए। एक्सेल गिव प्रोजेक्शंस, मेरे फ्यूचर अर्निंग्स कितने होंगे, फिर मेरे फ्यूचर एक्सपेंसेस कितने होंगे। आप ऑल ऑफ यू नाउ इन द गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ, आपके खर्चे मैनेज हो जाते हैं घर पे। मैडम से बड़े जान करके कह रही है, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ लेकिन सुनते नहीं है। तो बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन आपके खर्चे आप पे आएंगे, जिम्मेदारी आप पे आएगी, आपको अपने खर्चे करने पड़ेंगे, यू हैव टू बेयर योर एक्सपेंसेस एंड देन डू योर प्लानिंग। और फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनिए जिससे आपको उतने पैसे मिलेंगे कि आप 3 साल बाद गाड़ी खरीद सको, 5 साल बाद घर खरीद सको, 7 साल बाद अपने यूरोप का टूर कर सको। बट डू नॉट स्टॉप विद मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिव्यू करो। जब हम लोग यहाँ से लोनावला जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? गूगल पे देखते हैं ना शॉर्टेस्ट रूट कहाँ है, जहाँ ट्रैफिक नहीं है, कहाँ से हमको ब्लॉक नहीं होगा। वैसे ही जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, या कहीं हमको अपना डिटूर करना पड़ेगा, अपने को रीअलाइन करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस। अब वीडियो देखते हैं। सॉरी सर, इसको आप बंद करिए। विल सी 2 वीडियोस। हमारे जैसे लोग हैं, तनख्वाह कमाने वाले हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड उनका सिचुएशन क्या है जिंदगी में। हाउ इज इट गोइंग? ठीक चल रहा है? Hello friends, I am Mohan Bhargav. सुनाई दे रहा है? Come let's meet my family. This is my better half, Prerna. She's a consultant. And this is Vinny. Hey Vinny, say hi. And that busy man over there is Vivan. I am an engineer by profession. Our household earnings collectively is around 1.5 lakh per month. We own a 2.5-year-old car and a motorcycle. Some good memories made there. Our monthly expenses and the kids' school fees amounts up to around
1.1 lakh. Arey haan, how can I forget them? My mama and my papa. They live back in our village. Apart from other expenses, their medicines cost around 10,000 rupees. Sweet. Just a second. Thank you. Hey Ashok ji, namaste. How are you? Wait. Guys, this is Ashok ji, my neighbor. Although now he's a retired banker, he's still enjoying life to the fullest. Alright guys, it's time for my Zumba class. Ashok ji, say bye to my followers. Bye. Bye. Mohan out. एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? आप और हमारे जैसे फैमिली है, अच्छी फैमिली, मियां बीवी, 2 बच्चे, फिर हैप्पी फैमिली। तो उनकी इनकम कितनी है? 1.5 lakhs। खर्चा कितना है? 1.1 lakhs and 10,000 for his elderly parents staying in the village. 1,20,000 is his monthly expenditure. बचाते कितने हैं? 30,000। They are smart. At least they are saving 30,000 per month. मैंने जैसे बता दी थी 20%, 30% वो बचा रहे हैं from their salary. अब उनका सवाल ये है कि आगे इन्वेस्ट कहाँ करें? उनको अब सलाह दे रहे हैं मिस्टर अशोक, जो एक बैंकर हैं। सुनते हैं मिस्टर अशोक, what is his advice? My banker neighbor? Hello friends. Remember Ashok ji? My banker neighbor? So today he is going to guide me on how and where to invest the surplus funds that I have. Funds that my wife Prerna and I have. Acha, by the way, she is recording today's video. Another feather in her crown. Shall we begin, Ashok ji? Sure. First, I'll show you the 3 sutras which I have followed all my life. Sutra 1. Plan for emergencies, family goals, and retirement. Sutra 2. Take the impact of inflation into account. Take advantage of the power of compounding. And to get higher returns, you have to take higher risks. Oh, now I understand. Oh, wait more. Don't be so impatient. Now, my 3rd sutra is to invest in products as per your age and risk appetite. Invest in the stock market with a long-term view. Keep monitoring and be patient. Oh, I should have realized this many years ago. Now I have lost valuable time. Don't worry more. The time to start planning for you is now. I will let my friends from National Stock Exchange explain about my sutras in detail and guide you through your investment journey. That would be awesome. Thank you, Ashok ji. Thank you, Swami sir, for taking care of the videos. So we go back to the presentation now. तो ये उनके एक गुरु हैं, जिन्होंने उनको बताया है कि जो पैसे कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, what should be done with your savings. So let's look at that in more detail. What is the advice that Mr. Ashok has given to our friend here? So first is understand the risk-reward trade-off. There's a relationship between risk and reward. पहले top right के quadrant को देखिए. All of us want high rewards, but high rewards come with high risk. There are two sides of the same coin. आप लोग आज की generation में किसी ने शोले की picture देखी है क्या? देखिए आजकल. उसमें वो अमिताभ बच्चन के पास जो coin होता है, जय के पास उसका एक ही side होता है. But in reality, there are always two sides. So many people think वो high reward वाला एक ही side होता है. High reward वाला side नहीं होता है. Along with rewards comes high risk. ये समझना जरूरी है. लोग कहते हैं शेयर मार्केट में तो 15% रिटर्न मिलता है. Do you have the risk appetite? क्या आप में वो risk bearing capacity है? Do you have the risk tolerance? ऐसा है तभी आपको उसमें जाना है. और आपको जाने के लिए there are options. Equity है, equity oriented products and derivative futures. If you have the ability to take high risk, then you have the potential of getting high rewards. अगर आपको palpitations होते हैं, पसीना छूट जाता है, रात की नींद चली जाती है, it means you cannot bear the risk. Then the better thing for you is settle for low rewards, क्योंकि आपको risk bear करने की आपकी capacity नहीं है. Appetite होता है ना, जैसे
यंगस्टर्स हैव एन एपेटाइट फॉर नॉन वेज, सब कुछ खाने के लिए, बियॉन्ड मेरे एज के लोग थोड़ा हल्का खाते हैं. I don't have the appetite for it. So decide whether you have the appetite for risk or not. If you do not have that risk bearing capacity, settle for low reward. फिर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिए, बैंक डिपॉजिट में रखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट में रखिए. फिर मत वो ये बॉस वो फलान ये है ना, वो इसको उतना मिल रहा है, महक को 14% मिल रहा है क्योंकि वो रिस्क ले रही है. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेटल फॉर लो रिटर्न्स. ये एक सिंपल ट्रेड ऑफ है. अच्छा, यहाँ एक टॉप राइट देखिए, हाई रिवॉर्ड लो रिस्क. ऐसे आपको लोग प्रॉमिस करने वाले मिलेंगे कि साहब आपको हम 20% रिटर्न देंगे, 25% रिटर्न देंगे, नो रिस्क, गारंटीड रिटर्न्स. विश्वास रखिए मुझ पे, बिल्कुल मत विश्वास रखिए. दे आर फ्रॉडस्टर्स, दे आर चीटर्स, दे आर स्कैमस्टर्स. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां रिटर्न है लो रिस्क नहीं है. देयर इज ऑलवेज, जहां रिटर्न है वहां रिस्क है ही. दे गो हैंड इन हैंड. तो ये प्रॉमिसेस अगर कोई करता है उस पर बिल्कुल विश्वास मत रखिए, दे आर स्कैमस्टर्स. दूसरा टॉप बॉटम राइट, अभी जैसे हमारी फ्रेंड महक बोल रही थी, शी वांट्स टू डू फैशन का बिजनेस, ब्रांड बनाना है. नाउ इफ यू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, डू बिजनेस, और साल के आखिर में आपका अकाउंटेंट आपको बोलता है, सीए बोलता है कि आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 5% रिटर्न मिला है, विल यू बी हैप्पी विद दैट? इतना रिस्क ले करके अगर मुझे सिर्फ 5 लो रिवॉर्ड मिल रहा है तो व्हाट विल यू से? यार बंद कर दो दुकान, बैंक में रखो, 8% मिलेगा, सो जाओ आराम से. व्हाई टेक सच अ लॉट ऑफ रिस्क? सो इफ यू आर टेकिंग रिस्क, यू मस्ट बी कॉम्पेंसेटेड विद गुड रिवॉर्ड. तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड आपको इक्वेशन समझना है. नाउ सूत्रराज उन्होंने बताया, पहले ही सेट प्लान फॉर इमरजेंसीज. जैसे ही आप कमाते हैं, बचा हुआ पैसा तुरंत आपको इन्वेस्ट नहीं करना है. क्या करना है आपको? एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है. जैसे हमारी गाड़ी में रिजर्व होता है कि नहीं? रिजर्व क्यों बनाते हैं मैन्युफैक्चरर? ताकि गाड़ी आपकी पेट्रोल पंप तक तो जाए ना, उतनी पेट्रोल होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाए, यू कैन ड्राइव दैट डिस्टेंस. उसी तरह हमको एक इमरजेंसी फंड बनाना है. कितने का बनाना है? 4 to 6 months ऑफ योर हाउसहोल्ड मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस. अगर मेरा महीने का खर्चा अगर 50,000 रुपया है तो मैं 2 से 3 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड करता हूँ. उसको इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, खर्च भी नहीं करता हूँ. आई कीप इट एज माई रिजर्व. जब कोई बैड टाइम आते हैं, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया कि मेरी नौकरी छूट, आप जैसे लेडीज से नो आई डोंट वांट टू डू अ जॉब, 2-4 महीने का मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, आई वांट चाहती हूँ. इन दोस टाइम्स फॉर यू टू सस्टेन रिजर्व, आपको आगे गाड़ी चलने के लिए, दैट मनी यू शुड कीप इन अ रिजर्व फंड फॉर 4 to 6 months ऑफ योर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस. उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है. देन प्लान फॉर योर फैमिली गोल्स. पहला गोल क्या होगा? जब आप अज्यूमिंग दैट नन ऑफ यू आर मैरिड, पहला अपना मैरिज हो जाएगा. आजकल मैरिज आल्सो हैज हाई एक्सपेंसेस. तो मैरिज के लिए योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी मेकिंग अ प्रोविजन. और बच्ची आजकल कहती है कि मैं भी अब कमाने लग गया हूँ, आई एम आल्सो अर्निंग नाउ, मेरे मैरिज में मैं भी खर्च करूँ. इजंट इट? यू से इजंट मैं भी खर्च करूँगी अपने मैरिज में. सो देन यू आल्सो वांट टू हैव मनी स्पेंट ऑन योर ओन मैरिज. फिर बच्चा हो जाता है. आजकल जब बच्चा होता है तो घर पे नहीं होता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन होता है. टुडे चाइल्ड इज बोर्न ओनली इन द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल का खर्चा आता है इवन एट चाइल्ड बर्थ. फिर बच्चा जब प्ले ग्रुप में जाएगा, विजन इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्ले ग्रुप है सर, कितना एडमिशन फी होता है पता है? प्ले ग्रुप का एडमिशन 3 ईयर ओल्ड का फी 40,000. बड़े स्कूल में जाओ तो 1 लाख से कम नहीं होता है. सो इवन सेंडिंग अ बेबी, 3 साल के बच्चे को अगर स्कूल में जब भेजते हैं, उसका खर्च भी 1 लाख के उसके आस-पास होता है. देन बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका एजुकेशन का एक्सपेंसेस, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर कैन बी इन crores ऑफ रुपीस उसके एमडी के लिए. फिर बच्चा और बड़ा हो जाएगा उसकी शादी के लिए एंड रिटायरमेंट के लिए. सो फॉर एवरी स्टेज, नाउ दिस इज वेयर योर एक्सपेंसेस विल स्टार्ट गोइंग अप. इनकम बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे. फॉर ईच स्टेज इन लाइफ you must have money to meet those goals. So plan as per your goals and plan for your retirement. So the time to start planning is now. अभी शुरू करिए, never too late. अभी से ही आपको पैसे को मैनेज करना है. You have to start planning now and invest in less risky products for the short term and more risky products for the long term. अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपना मास्टर्स, जैसे सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ मास्टर्स भी हैं, तो मास्टर्स करने के लिए मुझे अगर जो फीस भरनी है शॉर्ट टर्म में 6 months to 1 year, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सेफ प्रोडक्ट्स में करूंगा, जहां मेरे रिटर्न्स मेरे स्टेबल होंगे. फिक्स डिपॉजिट में करूंगा. मुझे पता है 6 महीने बाद मैं फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा. शेयर मार्केट में कोई भरोसा नहीं है.
जब मैं लॉन्ग टर्म पे कर रहा हूँ तो मैं इक्विटी में करता हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर गुड इन इक्विटी मार्केट. शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट में करता हूँ, जहाँ मैं सर्टेनिटी रिस्क नहीं है, मैं पूरा क्लैरिटी है. आज मैं बैंक में पैसा जमा करता हूँ तो मैच्योरिटी अमाउंट बैंक मुझे रिसीट पे ही लिंक करके देती है. फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स. तो ये नीचे तस्वीर देख रही है. फॉर यंगर पीपल, ऑल ऑफ यू हैव अ हायर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यू विल हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की एसेट्स, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ मीडियम एंड सेफ एसेट्स. जैसे उम्र बढ़ेगी that will change. आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया ना, खाना हजम नहीं होता बियॉन्ड अ सर्टेन एज, सो वैसे ही योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी विल आल्सो गेट लोअर एंड लोअर. Gradually the proportion of risky assets will become less, safer assets will become more. By the time you become my age, safe assets का proportion ज्यादा होगा, risky assets का कम होगा. क्योंकि मेरे एज में आप 20 साल बाद का नहीं देख रहे हो, आप 2 साल बाद मेरे मेडिकल खर्चे के लिए सोच रहे हो, 3 साल बाद के खर्चे के लिए सोच रहे हो. So there you will have a higher proportion of safe assets and lower proportion of risky assets. तो ये it goes in age. जैसे अशोक जी बता रहे थे, invest as per your age. Youngsters take more risk, invest in high risky assets. As your age increases, shift towards safe and less risky assets. Very important thing. Investment decide कैसे करते हैं, कहाँ पैसे लगाए. सबसे पहली चीज है, मेरे बचाए हुए हार्ड अर्न सेविंग्स शुड बी सेफ. लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए. सेफ्टी इज द फर्स्ट. मेरा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए. सेकंड थिंग इज लिक्विडिटी. व्हाट इज लिक्विडिटी? मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुरंत मेरे इन्वेस्टमेंट को बेच करके मुझे कैश मिल जाना चाहिए. टेल मी वन इनलिक्विड एसेट. नहीं, गोल्ड भी आप जाओ, गाड़ियों के जाओ, रांका के जाओ, बेच करके पैसे मिल जाते हैं. कार भी बेच कर क्या, व्हाट इज अ कार का यूज्ड कार का है, साइड पे बेच करके. व्हाट इज इट जिसको बेचने में थोड़ा समय लगता है? लैंड और बिल्डिंग. आगे प्रॉपर्टी. अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मुझे दशहरा से पहले मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेच करके पैसे चाहिए, मुझे जाना है अंडमान, क्या अगले 10 दिन में प्रॉपर्टी बेच करके मुझे पैसे मिल सकते हैं? नहीं. जो खरीद रहा है वो बोलेगा फिर लेट मी आस्क माय एडवोकेट, टाइटल सर्च करेगा, बैंक से लोन लूंगा, पैसे जुटाऊंगा, यार मेरे को 1 महीना तो लगेगा बस. सो सम एसेट्स आर इलिक्विड एंड सम एसेट्स आर लिक्विड. तो जब मेरा गोल आता है, बिफोर दैट गोल आई शुड बी इन लिक्विड एसेट्स. एफडी में रखना चाहिए, गोल्ड में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, ताकि मैं तुरंत उसको बेच करके मेरे नीड्स को फुलफिल कर पाऊं. जब मेरा गोल दूर है तब मैं प्रॉपर्टी में होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी अभी जरूरत नहीं. फॉर यू इन्वेस्टर्स आपको लिक्विडिटी की जरूरत नहीं होगी. द थर्ड थिंग इज रिटर्न्स. हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वापसी की अपेक्षा से. और हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स आर डिफरेंट. एफडी पे आपको 6% मिलेंगे, इक्विटी पे मिल सकते हैं 15%, गोल्ड पे कुछ और रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो यू लुक एट रिटर्न्स दैट यू गेट ऑन द इन्वेस्टमेंट, उसका इवैल्यूएशन करना. चौथी बात है कन्वीनियंस. बैंक में जाओ, चक्कर काटो, फॉर्म फिल करो, 2 बार जाओ, यहाँ ऑफिस जाओ, वैसा नहीं होना चाहिए. ऑनलाइन देयर शुड बी कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिंग. अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, कन्वीनियंटली आपको इन्वेस्ट करना आसान, सहूलियत होनी चाहिए. एंड टिकट साइज. व्हाट इज टिकट साइज? टिकट साइज द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप सब जवान लोगों के लिए क्या प्रॉपर्टी का टिकट साइज कन्वीनियंट है? आप इस उम्र में तुरंत प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? बट नो, दैट इज नॉट अ सूटेबल टिकट साइज. उसका टिकट साइज जैसे आपने बताया 70 लाख तो होगा ना रेंट फ्लैट. दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू. तो टिकट साइज आपके रिक्वायरमेंट को, आपके रिसोर्सेज को मैच करता है कि नहीं, ये देख लो. फिर टैक्सेबिलिटी. अब जैसे सम ऑफ योर सीनियर फैकल्टी, सीनियर नहीं कहना चाहूँगा, सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स विल नो कि एक पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट. उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री. तो वहाँ इट इज कंप्लीटली टैक्स एफिशिएंट. टैक्स का फायदा है वहाँ पे, आपका अर्निंग्स इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये देखना है कि आप पर टैक्स का बोझ, बर्डन कम होना चाहिए. हमको टैक्स इवेजन नहीं करना है. वी हैव टू मैनेज एंड बाय इन्वेस्ट इन टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. और टैक्स डिडक्शन क्या होता है ये. तो जैसे इन्होंने बताया, इन्वेस्ट इन लेस रिस्की प्रोडक्ट्स फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में करें. अब एक बहुत ही अच्छा स्लाइड है. स्टैटिस्टिकल स्टडीज शो पिछले 30 साल में रिटर्न्स कैसे मिले हैं किस किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे. पहली चीज ये है, जैसे मैंने बताया, हम इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स को लेकर के. रिटर्न्स 2 प्रकार के होते हैं. एक है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, एक है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा है रियल रेट ऑफ रिटर्न. नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? बैंक में जब एफडी डालते हैं तो बैंक कहती है आपको 6% रिटर्न देगा. ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है. आपको किस पे ध्यान देना है? रियल रेट ऑफ रिटर्न. रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न.
महंगाई के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर इन्फ्लेशन से कम मुझे रिटर्न मिल रहा है तो मेरा परचेसिंग पावर उतना का उतना ही रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन विल ईट इनटू माय मनी। मेरा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होना चाहिए। सो लुक एट रियल रेट ऑफ रिटर्न। और क्या महंगाई कभी जाने वाली है? फॉरगेट इट। एनी जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगा वही चिल्लाएगा महंगाई हुई है। देश में होता रहेगा। इट इज इकोनॉमिक्स नॉट पॉलिटिक्स। क्यों? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, सप्लाई इज लिमिटेड, तो महंगाई तो बढ़ने ही वाली है। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू इन योर लाइफ टाइम। तो इन्फ्लेशन ऑफ 30 इयर्स वाज अबाउट 6.7%। हर प्रोडक्ट ने इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया था। सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको 8.5% के आसपास रिटर्न मिल जाता। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते इन द पास्ट 30 इयर्स इट वुड बी 8.78%. गोल्ड वुड हैव गिवन यू 8.83%. द क्वेश्चन फॉर दिस ऑडियंस, सोने का भाव कितना है? पार्टिसिपेशन निकालने के लिए आई थिंक आई शुड आस्क दिस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. Women have the answer straight. हमको पता नहीं था ना सोना कितना है? Yes, 10 ग्राम का कितना? Very. To the last rupee बोल सकते हो आप। I know इतना 1.14 आएगा, 1.14 कितना है? 1.12 ठीक है, और हो जाएगा सेटल फॉर समथिंग। तो गोल्ड इज अ मेरे जब हमारी शादी हुई थी 30 साल पहले, गोल्ड वाज 5000 रुपीस पर कैन यू बिलीव इट? 10 ग्राम के लिए आज ओवर द लास्ट 30 इयर्स इट इज 1,10,000 रुपीस. सो गोल्ड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स. पीपीएफ यहाँ पे हम लोग टैक्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं 9.64%, एंड द हाईएस्ट रिटर्न ओवर पास्ट 30 इयर्स इज कहाँ मिलता है हाईएस्ट रिटर्न ओवर पास्ट 30 इयर्स? इक्विटी 15.4%. लेकिन हाई रिटर्न्स कम विद, ये समझना जरूरी है. लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि 50.4% रिटर्न है, उसके साथ रिस्क भी समझना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ लुक एट द टॉप. ऊपर आप देख रहे हैं एक सैपलिंग है. आपको इस उम्र में सैपलिंग्स लगाने हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. आई गिव एन एग्जांपल. मैं जैसे ट्रेन करता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ. बारामती के स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर मिले थे. 30 साल पहले उन्होंने म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपए लगाए थे. ही डिड नॉट ब्रेक दैट इन्वेस्टमेंट, ही स्टेड इन्वेस्टेड. आज उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बन गया है 2,75,000 रुपए. Just 3,000 rupees 30 years ago has grown to become a money plant of 2.75 lakhs. तो आप सोचिए 3,000 रुपए आज कुछ नहीं है. Now you have to plant these saplings every month. हर महीने एक SIP करना है 500 रुपए का, 1,000 रुपए का. Imagine 30 साल बाद वो सैपलिंग कितना बड़ा मनी प्लांट बन जाएगा. So that is what you do. अब इस मनी प्लांट को पानी कौन डालेगा, उसका वीड कौन काटेगा, ये भी देखते हैं. Discuss that. तो दैट इज व्हाट यू शुड प्लान फॉर योर फ्यूचर. इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग. ये जुआ नहीं है. रेकलेसली माइंडलेसली कुछ करना नहीं है. सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है. यू शुड पुट इन एफर्ट्स. आई सेड मनी विल वर्क फॉर यू. लेकिन अगर लेजी रहेंगे, थॉटलेसली करेंगे तो काम नहीं करेगा. आपको सोचना है. यू शुड प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज एंड देन इन्वेस्ट. क्या सोचना है? वेयर यू आर गोइंग विद योर इन्वेस्टमेंट्स. क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको महाबलेश्वर ले जा रही है या आपको मुंबई ले जा रही है? आर दे टेकिंग यू टू योर डेस्टिनेशन? What you are investing in, वहाँ पे रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, टैक्स क्या है, रिटर्न कितना है, ये सब समझ करके आपको इन्वेस्ट करना है. Who you are dealing with, क्या ये सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, क्या ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, और अगर मुझे शिकायत करनी है तो किसको अप्रोच करना है, ये सब समझना जरूरी है. अब कैपिटल मार्केट क्या है? मंडी है. यहाँ पे मंडी है ना पुणे में. वैसे एक मंडी है जिसमें मंडी में क्या होता है, फल और सब्जी बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं. मॉल में जाते हो तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं. So this is another मंडी या मंडई जिसमें फर्क क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. तो मंडी में फिजिकल गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, मॉल में फिजिकल गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. यहाँ पे फाइनेंशियल, फिजिकल नहीं है, फाइनेंशियल वर्चुअल प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड. तो म्यूचुअल फंड, मैंने पूछा ना आपको कि आपका सैपलिंग को पानी कौन डालेगा, उसकी वीड कौन निकालेगा? उसका काम करना है फंड मैनेजर का. आपके पैसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. मैं तो फैशन डिजाइनर हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, मेरे पैसे को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा. तो ये आपको सौंपना है एक फंड मैनेजर को. म्यूचुअल फंड को पैसे सौंपते हैं. म्यूचुअल फंड का क्या काम होता है? वो हमारे 70 लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे. 1,000 रुपए सबके डोनेट कर दिए, कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए. 70,000 रुपए का पैसा ये फंड मैनेजर मैनेज करता है. इज द एक्सपर्ट. उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, उसकी स्ट्रेंथ जो है
एक रिसोर्सेज है उसके, he will do the study of the markets, रिसर्च करेगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न देता है, कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ लगाने हैं, सारा रिसर्च करके वो आपके पैसे को मैनेज करेगा. He is like your सारथी. मुझे गाड़ी देनी है, मेरे पास गाड़ी है, मुझे ये रिस्क लेना है, हाईवे पे मुझे नहीं चलाना है, मैं गाड़ी देता हूँ, चाबी देता हूँ, मुझे ये गाड़ी ले, एक दिन का तेरा 1000 रुपीज ले ले, 1500 रुपए ले ले, मुझे महाबलेश्वर दे दे. He is that सारथी. वो अपना गार्डनर है जो अपने सैपलिंग मनी प्लांट को पानी देगा, उसके वीड निकालेगा. सो गिव दैट मनी टू द एक्सपर्ट. किसी और को नहीं देना है, एक म्यूचुअल फंड को देना है, वो हमको रिटर्न्स लेकर के अपने पैसे देगा. सो रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना. व्हाई म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड है, ट्रांसपेरेंसी है. जैसे आपको कॉलेज आपको रिपोर्ट देती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वैसे देयर विल बी अ फैक्ट शीट. हर महीने आपको मेल में आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, रिटर्न कितना है, कैसा एलोकेशन हुआ आपके पैसे का, पूरा आपको रिपोर्ट मिलता जाएगा. ट्रांसपेरेंसी रहेगी. लिक्विडिटी, कभी भी म्यूचुअल फंड को बेचना है, 2 दिन में आपको पैसा आ जाएगा. तीसरा इज कन्वीनियंस, और सबसे बड़ा चीज है स्मॉल टिकट साइज. ये आप यंगस्टर्स के लिए सबसे कन्वीनियंट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो. 500 रुपए आजकल ऐसे खर्च हो जाता है ना, महीने में आप 500 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो. स्मॉल टिकट साइज और डाइवर्सिफिकेशन. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में जब 70,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाया जाएगा. एंड इट इज वेल रेगुलेटेड, सेबी इसको रेगुलेट करते हैं. अब रिस्क को समझे कैसे, तो म्यूचुअल फंड्स गिव यू अ रिस्कोमीटर. जैसे हमारी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है ना, वैसे इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट इन्वेस्टमेंट. तो ये म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है एंड इज इट अलाइन्ड विद माय रिस्क एपेटाइट. मैं अगर लो रिस्क वाला आदमी हूँ तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड चुनूंगा जिसमें रिस्कोमीटर दिखाता है कि इसका लो रिस्क है. अगर मेरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आई लुक एट द रिस्कोमीटर, हाँ ठीक है, हाई है, इट अलाइन्स विद माय रिस्क. अगर मैं लो रिस्क एपेटाइट है तो मैं हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को बिल्कुल नहीं टच करूंगा. सिंपल एक लेमैन के लिए एक रिस्कोमीटर दिया गया है जिससे आप रिस्क को समझ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो फंड को मैनेज कैसे, एनीबॉडी इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड हियर? ओके, देन फॉर ऑल ऑफ यू आई विल जस्ट टेल यू कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट किया जाता है. यू हैव टू कंपेयर इट विद द बेंचमार्क. इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क क्या है? सेंसेक्स. अगर सेंसेक्स एक साल में 10% रिटर्न दे रही है तो मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना देना चाहिए? 10% चाहिए. उससे अधिक मैंने एक्सपर्ट को पैसे दिए ना बॉस, उसने तो मुझे 10% से ज्यादा ही देना चाहिए, वरना मार्केट जितना देता था उतना मुझे मिल जाता था. So to evaluate the performance of your mutual fund, see whether the fund manager is delivering returns which are at least equal to or better than the market. Sensex से कंपेयर करो. दूसरा एक्सपेंस, जो म्यूचुअल फंड खर्च करती है वो हमारे इकट्ठा किए हुए पैसे में से करती है, तो एक्सपेंस रेशियो भी डिस्क्लोज करती है. फालतू उन्होंने खर्च नहीं करना चाहिए, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. लुक एट द एक्सपेंस रेशियो. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुक एट द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द फंड मैनेजर. हमारा साथी कैसा है, हमारा गार्डनर कैसा है, उसकी स्किल, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस कैसा है, उससे तय करेगा वो अपने मंजिल को जाने में मदद करेगा या नहीं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, उनके लिए है. अच्छा, गोल्ड के बारे में एक समझिए. गोल्ड में इन्वेस्ट, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में दिक्कत क्या है, रिस्क क्या है, लिमिटेशंस क्या है? थेफ्ट का है रिस्क, उसको आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, चोरी होने की खतरा होता है. दूसरा प्योरिटी, प्योरिटी है कि नहीं, वो घट जैसे यहाँ बोलते हैं, घट हो सकता है उसमें. सो फिजिकल गोल्ड में रिस्क है. उसका ऑप्शन है यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स. इट इज पेपर गोल्ड, और फायदा यह है कि गोल्ड में आपको कुछ रिटर्न्स मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. गोल्ड पे रिटर्न्स मिलते हैं आपको नहीं. गोल्ड बॉन्ड्स में यू गेट 2.5% पर 6 months. ये फायदा है गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का. सो स्कैम्स से बचिए. अभी हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, स्कैम्स से कैसे बचना है. कहीं भी पब्लिक वाईफाई मत यूज करिए, ऑथेंटिकेशन करके, बायोमेट्रिक करके ही इस्तेमाल करिए. डू नॉट कीप योर डेटा सेफ. लोग आपको प्रॉमिस करेंगे 100% रिटर्न, 5x, 10x, 100x. ऐसे कोई प्रोमिसेस पे विश्वास मत करिए. डू नॉट डाउनलोड अननोन फाइल्स. अननोन फाइल्स को कभी भी डाउनलोड मत करिए. डू नॉट जॉइन सब, नोबडी गिव्स एनी टिप्स. टिप्स हम किसको देते हैं? वेटर को देते हैं. हमको कोई टिप देना, क्या हम वेटर हैं कि हमको कोई टिप दे? नो. अगर कोई टिप देता होगा तो खुद ही ना पैसे लगाए. हमको क्यों बोलने लग रहा है? व्हाई इज ही टेलिंग अस टू इन्वेस्ट? नेवर डिपेंड ऑन टिप्स. You should do your own research or depend on the mutual fund investor.
कोई लोग आपको प्रमोट करेंगे विद सम सेलिब्रिटीज के फोटोग्राफ्स, गवर्नमेंट का एम्ब्लेम आपको दिखाएंगे जैसे इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट या कोई सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा है। डू नॉट बिलीव एनीथिंग। और आजकल एआई की वजह से तो बहुत भारी रिस्क हो रहे हैं। क्लोनिंग है, वॉइस क्लोनिंग है, वीडियो क्लोनिंग है। आपको लगता है जैसे आपका भाई बोल रहा है, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, आपकी माँ बोल रही है, बी श्योर डू नॉट टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू। अनयूजुअल एक्टिविटी, नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक्स और अपना पासवर्ड और आईडी किसी से शेयर मत करिए। तो आपको अगर देखना है कि सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज कौन है, यहाँ स्कैन करिए। मुझे अगर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है देखना है तो स्कैन करके आपको मिल सकता है। इफ यू वांट टू सी अ ब्रोकर, स्कैन करके देखिए ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है कि नहीं, उन्हीं से आप संपर्क करके अपने एडवाइस ले सकते हैं। और अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो इन्वेस्टर सपोर्ट को आप कॉल कर सकते हैं। You're taking photograph. Last few slides, please take. तो एक हमको प्लेज लेना है that will protect our funds and be cautious investors, mindful investors. तो जैसे हमारी गाड़ी के सर्विस सेंटर्स होते हैं, वैसे NSE के सर्विस सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। कभी भी आपको शिकायत हो, फिजिकली आप जा करके वहाँ अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। दिस इज अ चैलेंज। आपको अगर शौक है तो यू कैन टेक एन इन्वेस्टर यू कैन टेक दिस टेस्ट, इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम, और यू कैन टेक दिस टेस्ट। यहाँ यू कैन, इट इज फ्री, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप पास हो जाएंगे तो, एंड यू कैन टेस्ट योर नॉलेज, आपको कितना पता है। और फ्यूचर लर्निंग के लिए मैंने फॉर द लास्ट 45 मिनट्स आई बीन टॉकिंग टू यू अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। एक ऐप है यूर ऑल टेक सेवी पीपल, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारे रिसोर्सेज, वीडियोस, कैलकुलेटर्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं अबाउट मार्केट्स। सारथी ऐप प्ले स्टोर में जाकर के, सेबी का है, नॉट एन अनऑथराइज्ड ऐप, उसको आप डाउनलोड करके अपना लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वेबसाइट पे भी आपको सारे रिसोर्सेज और डिटेल्स हैं। एंड कंप्लेंट्स, अगर आप में से जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको किसी को कंप्लेन करनी है तो वहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, ओडीआर मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं कंप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट फ्यू स्लाइड्स का मैडम फोटो ले लीजिए। दिस इज द NSE का साइट, यहाँ पे आप स्कैन करेंगे, यू कैन फॉलो NSE एंड दैट्स हाउ इट इज। दिस इज द स्टॉप दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज़ किसी भी स्पीकर का सबसे इजी काम होता है बोलना। The Q&A is the real part of the discussion. तो आपके अगर कोई सवाल होंगे तो आपके जवाब है ना। टीचर्स ट्रेनर्स, आपको लेक्चर जानना तो बहुत आसान होता है, जब कोई बच्चा कुछ पूछता है that is a real test of a trainer. And that really gives me food for thought. जैसे इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया ना बारामती एक सर क्या बता रहे थे, that gives me more points to incorporate in my own presentation. Feel free to ask questions. Yes ma'am. Would you give a big round of applause to Anjali ma'am? Very nice. So there are no questions, sir, but I would like to share something. I've read Warren Buffett, and at the age of 11, he started investing. He is the earliest investor, and he is considered one of the richest person in the world. And he is a philanthropist. He had bought a house. He's born in 1930, and in 1958 he bought a apartment, which is a 5-bedroom apartment, and he still stays there. And he still travels in a very basic car. So, and he's the richest person in the world. So I think it's all about needs, wants, and desires, and it's a very interesting book you all can read. Warren Buffett. Yes sir, Govinda sir. Swami Sarangi mic also will. I understand from behalf of all the students and us as faculties, I would like to ask you a couple of questions Sure. which are very, very crucial. Absolutely. We have kind of understood what exactly this is all about, Oh, photo करना है but at the age of what the students are, what is the first point of contact? Good. Or rather, what is the first step? If someone from maybe 10 girls from here decide that from tomorrow I would like to invest rupees, and let's be very realistic. If 10 girls decide that I want to invest say 500 rupees from next month, that is the first Dasra ko I will put there 500 rupees. Good question. So what is the first point of contact, or what are the options, and who should they contact Very good. in terms of starting their journey as an investor? Absolutely question. Good question, Govinda sir. Can I? Yeah. To me, yeah. They want you to be on the central stage. So I hope you have the same question in mind. So I want to put this question. Sir, तुम्ही हात वरती करत होता का? My question to all of you is, in the discussion that we had,
have you got any ideas about what you plan to do with the 500 rupees on the share a day? I want to know from you. This is not a test. I'm not going to give you marks for internal marks for this. But on the discussion that we had, if you have 500 rupees now, do you have any idea at all as to what you do with those 500 rupees? Anyone? Yes? Start an SIP. Thank you. मेरे 45 मिनट की मेहनत को आपने Give her a very big hand. What's your name? Sneha. She's answered bang on. 500 रुपए की You are coming in the photographs also. 500 रुपए का मेरा अगर इस उम्र में सेविंग्स है तो मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, SIP शुरू करनी है. और किसको देना है 500 रुपया? म्यूचुअल फंड, एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी है. म्यूचुअल फंड में 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, रुकना नहीं है. अगले 30 साल के लिए कम से कम 500 रुपए. दिस इज अनदर स्लाइड इफ आई कैन शो यू. आपको टाइम है ना स्मिता, उमेश सर है ना? मला हे एक बंद करा सॉरी सर. आई शो यू वन प्रोजेक्शन बिकॉज़ ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. अगले 25 साल में दूसरा स्लाइड होगा. So here's a little case study. ये आपकी उम्र के बच्चे हैं, 22 साल का anonymous है. Look at his or her question. वो कह रहा है I am 22 on my first job. ये Rediff mail में पढ़ा है. You can ask any expert on Rediff mail. कहीं भी पूछ. ये मैं 22 साल का हूँ. Partly answers this question. मैं 75,000 रुपए महीना कमाता हूँ. My expenditure is 20,000. शायद माँ बाप उनका खर्चा करते होंगे. तो 20,000 का उनका खर्चा है. 5,000 ऊपर नीचे. 25,000 रुपए खर्च करता है. 50,000 वो बचाता है. He is saying I have experience in mutual fund SIP, but I took out money because I was barely beating inflation after 8 months. यानी बच्चे को ये भी मालूम है मेरा रिटर्न should be inflation beating returns. इस 22 साल की उम्र में वो सेव भी कर रहा है म्यूचुअल फंड में, लाइक स्मिता से हाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में. लेकिन उसने क्या किया, 8 महीने में निकाल दिया पैसा. एंड ही सेज I want to know how I get 1 crore in 7 years. Boss, look at the boys clarity, girls clarity. 7 साल में इन्हें 1 करोड़ का कॉर्पोरेट क्रिएट करना है. टारगेट उनका क्लियर है, कितना करना है, कितने सालों में करना है. 22 साल से उम्र के वो सेव कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू कर दिया है. तो गलती क्या करी है, स्टिल लर्निंग, शी स्टिल लर्निंग. तो एक्सपर्ट उनको बताते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ 7 साल में करने हैं तो आपको कम से कम 50 to 60,000 का SIP करना पड़ेगा. तब आप 7 साल में यू कैन मेक 1 करोड़. और दूसरा उन्होंने क्या गलती की, 8 महीने में उन्होंने पैसा निकाल दिया. 8 मंथ्स में आपका SIP विल नॉट ग्रो एंड गिव यू इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स. उसके लिए 10-20 साल लगेंगे. इट्स लाइक अ मैंगो ट्री. आज लगाओ तो आपको 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में फल मिलेगा. दूसरे दिन 8 महीने में फल नहीं मिलेगा. दी अदर थिंग इज पहले इंश्योरेंस करो, टर्म इंश्योरेंस करो, हेल्थ इंश्योरेंस करो, फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए करो. सो दैट्स द लर्निंग कर्व. ये बच्चे ने सीखा. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी इयर्स, लुक एट दिस. आप 25 साल की इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं. सर ने स्मिता स्नेहा सेट्स 500 रुपए. लेट्स से 5,000 नहीं, 500 रुपए स्नेहा शुरू करती है. लेट्स अज्यूम अ मॉडेस्ट रिटर्न ऑफ 6%. ज्यादा नहीं, हम 6% रिटर्न ही मान लेके चल रहे हैं. एंड एट 500 रुपीज पर मंथ अगर वो इन्वेस्ट करती है फॉर द नेक्स्ट 35 years, आई एम अज्यूमिंग शी इज 25, शी इज एक्चुअली 18, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ 25 है. तो एट द एज ऑफ 60 you can imagine how much money that will grow. मैंने मनी प्लांट होता है ना, सैपलिंग, वो 35 साल में बढ़ करके कितना हो जाएगा. अगर हम 5,000 रुपए महीने करते हैं तो that will become 71 lakhs. अगर मैं थोड़ा डिले करता हूँ, थोड़ा और मस्ती करता हूँ, 35 साल तक खेल कूद करता हूँ, सारा पैसा खर्च करता हूँ, एंड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 35, वही करता हूँ 5,000 रुपए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15 लाख. लेकिन वो मेरी 60 साल की उम्र तक बढ़ेगा जरूर, बट इट विल बिकम 34.82 लाख, यानी हाफ हो जाएगा. तो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग नाउ, आज से ही आप 500 रुपए से शुरू करिए. बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. दैट इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. ऐसा तो ये पावर फॉर्मिंग बताता है. एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो ये कंडीशन इज द रिकॉर्ड. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? नो. और आइए पूछिए. I just want them to know
if they have to invest 500, do they go on the SBI side, HDFC side? Where will they go and invest 500? Good question. That I'm not an investment advisor. I'm a trader. So they must consult an investment advisor. They must consult a specialist. So investment advisors should be registered. They should get an investment broker. They are the experts who tell about which product to invest in. I'm not here to sell products. I'm here to tell you the importance of investing. So they, SBI, HDFC, they will either do their own research or find an investment guru. अशोक था ना उनके लिए वैसे ये गुरु उनको मिलेगा, उनको बताएगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है इज योर जर्नी, करना है इज टेलिंग माय जॉब, बट ब्रॉडली कहाँ करना है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड. डाइवर्सिफाइड क्यों? अगर मैं आईटी में करता हूँ तो टर्म टैक्स आ गया आईटी कंपनी, सो मैं ऐसे करूँगा जहाँ मेरा डाइवर्सिफाइड बास्केट, जैसे हमारी इंडियन थाली होती है ना, चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, सब कुछ होता है, वैसे डाइवर्सिफाइड बुके होता है, उसमें सिर्फ गुलाब होते हैं क्या नहीं होते, गुलाब होते हैं क्या कम होता है, सब कुछ होता है. सो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए. कौन से प्रोडक्ट इज समथिंग दैट यू शुड डिस्कवर विद एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का. मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा रोल यहाँ समाप्त होता है कि मैं बताऊँ आपको, डिस्क्लेमर आपको दिखाया नहीं मैंने, शुड शो द डिस्क्लेमर. दिस इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स. Have I answered the question now, sir? I think all of you should talk to your parents, consult with your parents, and tell them that you would like to invest, and they should recommend you someone where you can start putting 500 rupees. But I think you should start somewhere. The last one is important. लेकिन आपके बच्चे पेरेंट्स को पूछते हैं क्या? मेरी डॉटर को मेरे को नहीं, of course she is much older than you. हाँ, I know. You are all 20 years old. मेरी डॉटर को मुझे नहीं पूछी. She is 29 and she is a CA. ज्ञानी है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है. तो you have to एक किसी गुरु को पकड़ो जो आपको रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, वो आपको सलाह देगा. 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में करना है तो एसबीआई में कर सकते हो. कैसे चुनते हो? गुड क्वेश्चन. हाउ डू यू सेलेक्ट? मैंने आपको बताया ऐसा फंड मैनेजर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-5 साल का सेंसेक्स बीटिंग रिटर्न है, वो देखो, उसको आपको करना है. थोड़ा अपना रिसर्च भी करना है, अपना पैसा है ना, किसी के भरोसे आंख मीच करके तो हम नहीं कर सकते. क्वेश्चन आंसर सर. Any other questions? Yes, sir. ग्रे मार्केट प्राइस आता है जो आईपीओ के पहले होता है ग्रे मार्केट, सो इट्स फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर और ओनली फॉर द बिग इन्वेस्टर? No, small or big is other, it is for risk takers. What is? And one more is what is the difference in ETF and mutual fund and where to invest? Very good question. accordingly? Very good question. अरे पहला सवाल सर का सवाल ये है कि ग्रे मार्केट जो आईपीओ से पहले आता है, जहाँ थोड़ा सा स्पेकुलेशन चलता है कि बाजार में आईपीओ का दाम कितने पे आएगा, दैट इज नॉट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स एट ऑल. जो ब्लाइंड है उसमें कोई भरोसा नहीं है, इसमें लगेगा अपना हिट द बुल्स है अपना. बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है, वो हाई रिस्क टेकर्स के लिए है जो स्पेकुलेशन करते हैं, दे आर विलिंग टू टेक अ लॉस. तो इट इज अ हाईली स्पेकुलेटिव एक्टिविटी. आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स जो फंडिंग करते हैं, तो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, हाई रिस्क टेकर्स के लिए. दूसरा सवाल था आपका ईटीएफ में क्या है. सी म्यूचुअल फंड्स का प्राइस हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, एनएवी पे होता है, तो लिक्विडिटी उसकी कम होती है. ईटीएफ इज लाइक अ शेयर, आपको मिनट पे उसका प्राइस मिलता है, लिक्विडिटी आसान होती है. सो इक्विटी इज बेटर, मोर पॉपुलर इन विद इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसका इन्वेस्टर्स बिकॉज़ इसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है. ईटीएफ इज अ गुड प्रोडक्ट. Hey, wait, sir. All good. Does it count? Huh? You want 50? No. Are they really? One more sheet, please. Yeah. One or two sheets. Yeah, why not? And for your record also, you've taken the signatures, right? और कोई सवाल है? हाँ सर. SEBI also provides any courses or anything else? Very good question. I missed out with that. Very good question. Now there is the organization called, sir, what's your name? Omkar sir. There is an organization called National Institute of Securities Markets.
They run very small courses, 3,000 rupees, 1,500 rupees. तो आपको एक म्यूचुअल फंड बेसिक्स का एक कोर्स कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? NISM पे आपका सबका पैन तो है ना? एवरीबडी पैन है आपका? तो पैन लगेगा, रजिस्टर करना है NISM. We can open sir, NISM साइट ओपन करते हैं. We go to the NISM साइट और वहाँ रजिस्टर करो अपना पैन लेकर के. उसके बाद आप एक एग्जामिनेशन सेलेक्ट करो. यू कैन सेलेक्ट बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए यू कैन सेलेक्ट द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाला मॉड्यूल. उसकी एग्जाम आप स्वारगेट में, व्हाट इज दैट सेंटर, मेगा सेंटर, मेगा के सेंटर के पीछे सेबी का ये एग्जाम सेंटर है NISM का. वहाँ स्लॉट बुक करो, उस स्लॉट में जाओ, ऑनलाइन एग्जाम दो. 100 मार्क्स के पेपर में पासिंग इज 50%, नो नेगेटिव मार्क्स. बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो करो तो आपको NISM का सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा. That will be a learning for you. Very good question. I generally tell this to participants. मेरे इसे स्लिप हो गया. तो if you are interested, do take this basics of mutual fund वाला कोर्स. 1,500 का फी है. ऑनलाइन रजिस्टर करो, वहाँ जाकर के एग्जाम दो. फाइनेंस और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए इट इज कंपल्सरी. अगर आपको इंटरेस्ट है फॉर योर ओन गुड, जैसे सर ने पूछा टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड, तो स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा, एग्जाम भी दे सकते हो. और आगे जाकर के इफ यू वांट टू हैव अनदर एवेन्यू फॉर बिजनेस, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम भी दे सकते हो. जैसे इंश्योरेंस एजेंट को IRDA का एग्जाम देना पड़ता है, वैसे म्यूचुअल फंड अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कमीशन मुझे मिलने के लिए, आई कैन बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. गुड पॉइंट. आई एम हैप्पी यू रेज दिस क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, यस मैम. Yeah, see, it is, you can invest in shares, but you must understand the dynamics of shares. अगर shares में आप करोगे तो the risk is entirely yours. उसमें diversification नहीं कर सकते. Do you understand equity? If you understand, it's like driving your own car or giving it to another. मैं Volvo में जा सकता हूँ, मैं खुद अपनी ड्राइवर से. अगर मुझे, जैसे हम लोग बच्चे लोग सीखते हैं, पहले पिलियन राइडिंग करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता है तो वो रोड पे चलाने नहीं जाते. शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड में करिए तो कॉन्फिडेंस आता है, you can start investing. बट दोनों रख सकते हैं. You can do some SIP direct and also direct investing. तो मैम ने सही कहा था, वॉरेन बफेट इज 90+ नाउ, और उनके बेसिक नीड्स के अलावा वो सारा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. He had a partner Charlie, he died recently. Done? One more question. Do you think it added value to all of you? Do you think this discussion added value to all of you? Yes. Thank you. That speaks about how the session has been. And I'm so sure a lot of you all will start now investing. Like Satyajit sir was mentioning, you all can speak to your parents and do. So I would like to invite Umesh sir to please hand over a small token from Soft. So, मेरा काढून दे ना फोटो. on behalf of everyone present here, I extend a heartfelt gratitude to Dr. Abhinav Jog. Your insights have not only deepened our understanding of financial planning and investment,